हम सुनो मेरी बात, हमारे को टाइम आप टाइम सभा का दिया था, यहाँ तक हम खुद पहुँचे हैं। हर बंदा ने यहाँ तक। ਬਰਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹ ਧੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਰਾੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਬੈਗ ਨੂੰ 2 ਮੁੰਡੇ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਣਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। इंदर सिंह है और मैं अम्बाला गांव शहर का रहने वाला हूँ। घटना ये थी कि बराड़ा में मेरी सिस्टर की शादी हुई है और उसकी बेटी है अमनदीप कौर, जिसकी आयु 31 के आसपास थी। वो कल सुबह से लापता है। कल 10:30 बजे के आसपास उसका फ़ोन बंद हो गया था, तो हमें अंदेशा ये लगा कि नज़दीक हमने सोचा कि आ जाएगी 1-2 घंटे के बाद, जैसे भी है। हम अपने एंड पे 2-2:30 बजे के बाद उसको देखना स्टार्ट कर दिया हमने। नज़दीक धीरे धीरे हमें ये पता था कि वो घर से निकली एक रिपोर्ट लेने के लिए, बाबा रिपोर्ट लैब है, वहाँ से लेने के लिए गई थी। तो वहाँ से हमने नज़दीक जाके CC कैमरे फॉलो करने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमें ये लगा कि ये इन्फॉर्मेशन प्रशासन को देनी चाहिए। तो शाम को हम प्रशासन के पास आए, उन्होंने हमें ये बताया कि कोई बात नहीं, बालिग लड़की है तो शायद आ जाएगी, बट शाम तक आ जाएगी या कल सुबह तक आ जाएगी, हम वेट करेंगे, क्योंकि हम 24 आवर से पहले कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपने लापता की सूचना बराड़ा पुलिस को शाम को हमने दे दी थी। हमने अपने ये भी देखा ना 4-5 तक तो हमने इंटीमेशन लगाया भी शायद आ जाए, कहीं गई है अपने फ्रेंड के साथ या कुछ भी है, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन है, बैटरी लो जल्दी हो जाती है। तो इसके यहाँ पे हमने सोचा भी कोई बात नहीं, आ जाएगी। उसके बाद हमें अंदेशा लगा ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रशासन को देनी चाहिए। तो प्रशासन ने बोला कि हमें आश्वासन दिया कि ये 24 आवर्स के बाद हम काम करेंगे, पर हमने इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए हमने फिर से कैमरे फॉलो करने स्टार्ट कर दिए।
तो सुबह भी हम दोबारा प्रशासन के पास आए तो प्रशासन ने थोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई करने का ज़्यादा प्रेशर नहीं दिखाया हमें। तो हमने अपने एंड पे सारे कैमरे दोबारा से फॉलो किए और कुछ हमें पॉइंट्स हमें मिले जो हमने प्रशासन को ला के दिए। जो काम प्रशासन का था वो हमने अपने लेवल पे काम करके दिया। तो कैमरों में क्या दिखाई दिया आपको? कैमरे में हमें ये दिखाई दिया कि हमारी भांजी कहीं एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रही है, तो उसके बाद एक लड़का और जो जिसका नाम संदीप है और जिसको पप्पू करके जाना जाता है, यहाँ पे फाइनेंस का काम करता है, अपू करके जाना जाता है और ये फाइनेंस का काम करता है। इसका बैकग्राउंड जो हमें पता लगा है बहुत गलत है, इसका करेक्टर भी जी। उसके साथ ऊपर चलेगी, उसके बाद क्या हुआ? पहले हमारी भांजी गई है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ऊपर गया है। उस बाद में हमें देखा गया है कि वो बाद में नीचे आया है, 2-3 बार ऊपर नीचे गया है। बाद में 2-3 घंटे के बाद वो एक बड़ा सा बैग जो हमें फुटेज में दिखाया गया है, बड़ा सा बैग लेके ऊपर गया है। बाद में आफ्टर कुछ टाइम के बाद एक रेडी पर अरेंज की गई जाती है और रेडी वाले के साथ वो बैग वो नीचे धीरे धीरे करके ला रहा है। ये सारा काम हमने अपने लेवल पे सारा काम किया। जो काम प्रशासन का था वो प्रशासन ने नहीं किया। हम डिमांड करते हैं कि प्रशासन इतना सुस्त क्यों है। जो लग रहा था हमने इस देखते देखते एक रेडी वाले को भी पकड़ा, रेडी भी हमने सामने पकड़वा दी है, पर जो काम प्रशासन का था वो हमने किया था। हमें यही अंदेशा है कि लड़की के साथ मिस हैपनिंग हो गई है। बैग में क्या है उसमें? जो बैग का जिस लेंथ के हिसाब से दिखा गया है वो लड़की की बॉडी हो सकती है। यानी क्या लगा रहे हैं आप, क्या अंदेशा लगा रहे हैं, क्या हुआ है? हम यही अंदेशा लगा सकते हैं कि लड़की के साथ गलत हो गया है या कुछ भी हो गया है और ये प्रशासन हमारा सुस्त है। कब काम करेगा, कब जागेगा ये प्रशासन? जो काम प्रशासन का है वो पब्लिक कर रही है, अपने एंड पे कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस द्वारा अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी देखते हुए सारे फुटेज लेके उसके बाद ये भाग रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं। जो काम प्रशासन का होता है। तो जिस लड़के का आप नाम ले रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल। अभी तो लापता है, उसका फोन ही स्विच ऑफ है। ये काम करना चाहे तो 2 घंटे के अंदर सारा काम कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल ही साजिश सुस्त चल रहे हैं। कम से कम 30 घंटे हो गए इनको चलते हुए। लड़की के परिवार के बारे में बताएं। लड़की के परिवार के बारे में, लड़की पढ़ी लिखी थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और इसकी माँ को कैंसर है, उसका इलाज करवा रही थी। इसके फादर की साल पहले, इसकी सिस्टर है बड़े वाली, वो भी अपना शुगर की मरीज है। सारा काम इसी की देख रेख में चलता था। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कम से कम ये जो काम सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी करें, इनको पकड़ें। लड़की थी मनप्रीत कौर, 36 साल उम्र है इसकी। कल ये 10:30 बजे के आसपास बाबा लैब में गई थी, उसके बाद वापस घर नहीं गई। शाम को घर वालों ने दरखास्त दी थी और उस पर शाम को 10-10:30 बजे में कैमरे चेक करे गए थे, पता नहीं लगा। लेकिन आज जब कैमरे चेक करवाए तो उसमें पता लगा भी एक लड़का जो है वो अपनी बैग में कुछ भारी सामान उठा के जा रहा है उस बाबा लैब से। उससे साफ जाहिर होता भी ये। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमने टीमें बना दी है और जल्दी इसका पता लग जाएगा। बंसल जी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जली हुई थी। तो टाइम था 10-10:30 बजे के आसपास, कुछ ऐसा आइडिया था। तो यहाँ जब निकलते हुए आग देखी हमने, तो वो जो कपड़े झाड़ रहा था उस टाइम, वो नीचे की तरफ से गाड़ी आ रही थी जो ऊपर की तरफ गई है यहाँ से। तो उसकी वजह मेरे को लगा कि कुछ ऐसी आइडिया, मेरे को तो पता नहीं था कि ऐसे कांड हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम सीधे निकल गए यहाँ से। लोग का पता नहीं, मेरे को सिर्फ एक बंदा दिखा है बस, और कोई नहीं दिखा मेरे को यहाँ पे। बस एक गाड़ी नीचे की तरफ से आ रही जो ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें बताया जाता है कि एक जो बॉडी है वो, तो उसमें फिर SHO मौके पे आए हैं। तो मौके पे एक महिला की जो शव नज़र आता है और इसमें जो बॉडी है अराउंड 85 to 90। तो फिलहाल इसमें हमने FSL की टीम बुलाई है जो इसका जांच करी है, मौके की जांच कर रही है। उसके बाद इसका फोरेंसिक डिपार्टमेंट में इसका पोस्टमार्टम होगा।